morning, students. Can you all see my screen now? जो आपको मेरी screen दिख रही है? Hello everyone. Hello, good morning everyone. Hello. युगम संजय सार्थक, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, Good morning, ma'am. we will just wait for 1 minute and then we will start. Good morning. Okay, so let's start. I think others will not join, maybe. There are only 6 students. So tomorrow, guys, there will be no class. Tomorrow, your HOD has already informed you people. Tomorrow is a holiday, Saturday. Are you guys okay to have the next MCQ on Friday? Once, on Friday, are you okay with that? Or maybe on Saturday, if you want, I can arrange that. Otherwise, it has to happen somewhere in the next midweek. I'm just having a discussion and I want everybody to tell me your opinion and views. As we scheduled last Friday, first MCQ, second MCQ, can we schedule on this Friday, like tomorrow? Hello? Can you guys hear me? Danish, Shani, Mohit, Uday, everybody, can you hear me? Yes, ma'am.
कल हम लोग MCQ सेकंड MCQ रख सकते हैं कल in the evening, या फिर you want me to conduct it in the next week anytime during the class time? यस मैम, नेक्स्ट वीक रख लेना क्लास टाइम। ठीक है, okay. So you guys enjoy your weekend from tomorrow. Let's finish this topic EBIT quickly, and maybe next week we can start the next topic. So EBIT and EPS we started already yesterday. What exactly it is? We already have completed the leverages, the two kinds of leverages and their degrees. How to calculate the degrees of leverages? What is EBIT? What is EPS? We already know now after studying that topic. EBIT is earnings before interest and taxes. What is like our earnings before paying the interest on the debt capital and taxes to the government is our EBIT. EPS is after paying the interest and taxes, whatever the earnings are left to be distributed among the shareholders is basically the EPS. So that particular earnings which is to be distributed among the at the end to the equity shareholders is EPS. So this analysis we're going to study now, which basically gives us, it's a basic and important tool which is used to optimize the capital structure for the highest earnings of the shareholders. Once we do the analysis, जब हम EBIT और EPS का analysis करते हैं तो इस analysis से हमको ये पता चलता है हम different जो situations होती है ना हमारे लिए या हमारे business के लिए market में different situations जो भी available होती हैं, हम इस analysis से उन different situations को analyze करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन हमें हाईएस्ट अर्निंग्स दे रही है हमारे शेयरहोल्डर्स पर, यानी कि हमारा ईपीएस किसमें सबसे हाईएस्ट होगा. ओके, it helps us in understanding the sensitivity of the EPS at the highest level of earnings before interest and taxes under different sources of finances. It also helps us in analyzing how capital structure decision is important to raise the value of firm. Capital structure हम पढ़ चुके हैं, capital structure decision हम पढ़ चुके हैं. What is ideal capital structure? We also have studied that, and so EBIT and EPS analysis, this also helps us कि हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं वो कैसे लें. ऑब्वियसली व्हाट विल बी द बेस्ट और द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अस सो दैट वी कैन इंक्रीज द अर्निंग्स ऑन द शेयर होल्डर्स कैपिटल और अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द इक्विटी कैपिटल इक्विटी. And optimal financing structure minimizes the cost of capital and maximizes the earnings. तो अगर हमने अपना optimum financing structure रख लिया है, ये capital structure हमारा इस तरह का है कि हमने मिनिमाइज करा है उससे कॉस्ट को और मैक्सिमाइज हम कर रहे हैं. हमारा कॉस्ट अगर मिनिमाइज होगा तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगी हमारी अर्निंग्स. तो हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर देन देखना पड़ता है. जस्ट गिव मी अ मिनट. So that basically that structure which has the minimum cost of capital and gives us the maximum earnings on our capital structure is basically the one of the importance of EBIT and EPS analysis. कैसे वो analysis की हमने कल cover कर लिया था ये सारा कुछ, ये चारों points हमने कल cover कर लिए थे. I just have given you the overview. We also have covered these things in the last topic. जब मैंने आपको leverage पढ़ाया था तो ये particular slide मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था. इसी से हमको पता चला कि EBIT क्या है और earnings per share क्या है and all that. थोड़ा और एलेबोरेट करके इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी डाल दिया हमने. टैक्सेस के बाद हम पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, बाद में बच गया जो हमारा वो हम इक्विटी पर शेयर का ईपीएस में निकाल लेते हैं, अर्निंग्स पर शेयर में निकाल लेते हैं व्हिच इज फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स. नाउ अर्निंग्स पर शेयर निकालने में क्योंकि हमें ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से जैसे हमने स्टडी किया दैट वी वुड एनालाइज दैट कौन सा एक सिचुएशन या क्या एक बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए होगा जिसमें कि हमारे अर्निंग्स पर शेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो सकेगा. तो आपको ये प्लान्स दिख रहे हैं, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4. दिस कैन बी दीज ऑल कैन बी ऑप्शंस आल्सो, मे बी ऑप्शन 1, 2, 3, 4. और इन ऑप्शंस को अब हम
कैलकुलेट करके जो हमारा ईपीएस का फॉर्मूला है, जो हमने ईपीएस का फॉर्मूला कैलकुलेशन का देखा, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर विद दीज डिफरेंट प्लान्स, तो हमारा जो भी इसमें हाईएस्ट हमें अर्निंग्स पर शेयर देगा, जो भी प्लान हमें हाईएस्ट अर्निंग्स पर शेयर देगा, दैट विल बी आवर बेस्ट प्लान आफ्टर द ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। तो जब भी हम ईपीएस निकाल रहे हैं, हमें ईबीआईटी ज़रूर चाहिए है, और हमें टैक्स रेट हमारा क्या है जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, या हम इंटरेस्ट किस रेट से डिवेंचर्स डेट कैपिटल को पे कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमें चाहिए होगा। तो हम ये 4 प्लान है, मैं आपको 1 बाय 1 समझा रही हूँ। पहला प्लान और ऑप्शन हम क्या ले रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर से ही कैपिटल, पूरी कैपिटल को रेज करना चाहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन ये है। सो प्लान 1 इज ओनली इक्विटी शेयर, जैसे आपने देखा। अब ये चारों जो प्लान्स हैं, ये चारों जो ऑप्शंस हैं, हम आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी विल सी कि कौन सा बेस्ट है, कौन किस में अर्निंग सबसे ज़्यादा है। प्लान 2 में हम ले रहे हैं कि हम इक्विटी और डेट दोनों लेंगे, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स से भी हम कैपिटल थोड़ा सा ले रहे हैं, और हम इक्विटी शेयर्स से भी कैपिटल ले रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ हमने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, और इक्विटी कैपिटल हमें आ गई। हमें ये ध्यान रखना है, इक्विटी कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल, हम उसके बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग्स पर शेयर की, पर इक्विटी शेयर क्या अर्निंग हम देंगे। उससे पहले हमें ये पता होता है टैक्स का क्या फिक्स रेट है, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का क्या हमारा फिक्स रेट है, हमें ये भी पता है कि प्रेफरेंस का डिविडेंड का क्या फिक्स रेट है। इन बाकी सब चीज़ों का हमें रेट फिक्स्ड पता है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स या डेट कुछ भी, तो हम उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट देने का अग्री करते हैं, और वो हमें उनको देना भी पड़ता है। लेकिन इक्विटी का कुछ भी अग्री नहीं होता, तो वो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं इससे। प्लान 3 में हम इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स भी लेके आ रहे हैं, यानी कि इसमें हमने तीनों चीजें ले ली कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम देंगे, डेट को भी से भी रेज करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर और इक्विटी से भी करेंगे। तो यानी कि ये जो प्लान्स हैं, डिफरेंट प्लान्स, ये हमको हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स बता रहे हैं। पहला प्लान में सिर्फ इक्विटी है, नेक्स्ट में इक्विटी शेयर और डेट है, थर्ड प्लान में इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स तीनों ले रहे हैं हम, और प्लान 4 में हम इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हैं। यहाँ पर हम डेट नहीं ले रहे हैं। आप देखिए चारों प्लान्स, चारों ऑप्शंस एक दूसरे से डिफरेंट है। कुछ कुछ ये सारी सिचुएशंस हैं जो एक किसी भी फर्म के पास या किसी भी कंपनी के पास ये चारों ऑप्शंस होते हैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को रेज करने के लिए। एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग हो रहा है ये, या एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, कभी भी हो रहा है। जब भी हमको फंड्स की ज़रूरत है और हमें मार्केट से पैसा उठाना है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है कि हम या तो सिर्फ इक्विटी पर जाएं, या इक्विटी प्लस डेट पर जाएं, या इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस पर जाएं, या इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स पे जाएं। एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है, फिफ्थ ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम रिटेन्ड अर्निंग से अपना काम कर लें, हम मार्केट से कुछ नहीं उठाएं पैसा, और जो हमारे पिछले साल की अर्निंग्स हैं जो हमने रिटेन की थी, हम उनसे अपना काम आगे चलाएं। तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें हमें कुछ पे तो करना ही नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स में हमें कुछ पे नहीं करना, क्योंकि वो हमारी अपनी सेविंग से ही था। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हमने देखा, पढ़ा था जब हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल टॉपिक कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि रिटेन अर्निंग्स का एक्चुअल में वैसे कोई कॉस्ट नहीं होता। अगर हम कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसको रख सकते हैं, बट क्योंकि वो हमारी अपनी सेविंग्स है तो हमें उस पर किसी को इंटरेस्ट तो देना नहीं है, तो इसलिए वो ऑप्शन इसमें नहीं है। प्लान 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन हैं जिनसे हम मार्केट से, किसी और पर्सन से, या किसी और गुड नंबर ऑफ पीपल और पॉपुलेशन से कैपिटल रेज कर रहे हैं। तो उनको हमें कब, कितना, कैसे, क्या देना है, दिस इज द फॉर्मूला ईपीएस कैलकुलेट करने का। ईबीआईटी विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट, हमारा टैक्स रेट जो भी है 35, 32, 2, 18 वॉट एवर, जो भी हमारा टैक्स रेट है वो हम लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो भी हमारे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, हर बार हमने इसको नीचे हमने इसको ये यहीं पर डिवाइड जो करना है वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से ही करना है, क्योंकि जितने भी हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं जिनको हमें देना है डिविडेंड या अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट एज डिविडेंड, वो हम पर शेयर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो वो पर शेयर अर्निंग आएगा।
ये एक प्लान ये हमने एक इलस्ट्रेशन की प्रॉब्लम ले लिया है जिसमें कि हमें ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि कोई भी XYZ ABC कंपनी है जिसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख का, 100 रुपए का एक हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू जो हमने इशू की थी तो उस वैल्यू को हमने कितना पैसा मतलब एक इक्विटी शेयर से हमने मंगवाया वो उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 3 लाख शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए के शेयर कैपिटल हमने इशू किया ABC कंपनी ने और 100 रुपए का वो ईच था। तो टोटल नंबर ऑफ हो गए 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो उतने नंबर्स ऑफ शेयर हमारे पास हो गए 3000। Now it has decided to expand its business for which there is an additional capital requirement of rupees 1 lakh. अब उनको कुछ एक बिजनेस में एक्सपेंशन करना है, मे बी कुछ छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट करना है, नया कैपिटल लगाना है या कोई नई मशीन जो लेनी है, कुछ भी ऐसा उनको इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि एक्सपैंड होगा बिजनेस। तो उसके लिए उनको 1 लाख रुपीज़ की और ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो जो ये 1 लाख रुपए की जरूरत है, अब हम इस 1 लाख रुपीज को हम इन 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं कि या तो हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपया प्लान 1 के हिसाब से पूरा हम इक्विटी शेयर से ले लें, प्लान 2 के हिसाब से हम 50,000 इक्विटी से ले और 50,000 हम डेट से ले और हम डेट को अज्यूम करें 10% पर एनम पर देना पड़ेगा। सपोज हमें मार्केट से जो डिबेंचर्स का कैपिटल मिल रहा है वो 10% पर एनम पे मिल रहा है। थर्ड प्लान जो हमने रखा था उसमें हमने रखा था कि हम जो है डेट से भी लेंगे कैपिटल, इंटरेस्ट रेट 10% हमने रख दिया उसका। और प्लान 4 के हिसाब से हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने रेज कर रहे हैं 50,000 इक्विटी से, 50,000 हम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर से। Expected level of EBIT is 75,000. Tax rate is 30%. Which plan do you think it should go considering the one which would provide maximum EPS? इसमें जो प्लान इस प्रॉब्लम में जो हमने प्लान 1 2 3 4 किया है, हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट प्लान इज टोटल इक्विटी से, सेकंड प्लान है 50-50 इक्विटी एंड डेट से, थर्ड प्लान है टोटल हम डेट से कर रहे हैं, टोटल हम डेट से कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर से पूरा 10% के हिसाब से। और फोर्थ प्लान में हम रेस कर रहे हैं 50 थ्रू इक्विटी, 50 थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स नहीं है यहाँ, ठीक है। टैक्स रेट हम अज्यूम कर रहे हैं 30% है हमारा। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है हमारा 75,000, यानी कि हमारा जो EBIT है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा EBIT इस साल का जो अर्निंग्स होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वो 75,000 होगा। इस 75,000 में से अभी हमें टैक्स भी पे करना है, अभी हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पर हमने डेट कैपिटल लिया है और टैक्स हम सभी प्लान्स में से डिडक्ट करेंगे। टैक्स हमें हर प्लान में 30% डिडक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें सिर्फ वहाँ डिडक्ट करना है अर्निंग्स में से जहाँ पे हमारा डिविडेंड इंटरेस्ट है। तो हम इस इलस्ट्रेशन को अगर देखते हैं प्लान 1 के हिसाब से, प्लान 1 हम यहाँ पर देखिए दोबारा से इसको लेफ्ट में जो ये हाईलाइटेड में है, टू रेज फुल रुपीज 1 लाख फ्रॉम द इशू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपए का एक शेयर था, तो हमें 1 लाख रुपया रेज करने के लिए हमें 1000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। 100 रुपए का एक शेयर हमने जब कॉल किया है इक्विटी शेयर होल्डर से मनी के लिए टू फॉर द इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास टोटल जो अभी एग्जिस्टिंग है वो 3000 हो गए हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए की क्योंकि हमारी कैपिटल एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल हमारी 3 लाख है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 3000 ऑलरेडी हमारे पास है। 3000 पे हम किस तरह से रेस करेंगे, EPS इज इक्वल टू EBIT 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट को 30% अगर आप करेंगे तो वो 0.030 आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा 30%, 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे 3000 शेयर्स हैं, एक तो पुराने वाले और अभी वाला जो हमारे 10,000 हमने और इशू करें 1 लाख की कैपिटल के लिए, टोटल हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए हैं 4,000 रुपया। तो ये हमें अर्निंग पर शेयर जो उसने दिया 13 रुपये 12 पैसे दिया, ठीक है। हमने ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपया रेस किया हुआ था, 1 लाख और रेस करने के लिए हमें 3000 प्लस 1000 4,000 हमारे इक्विटी शेयर हमने इशू किए, तो टोटल कैपिटल जो 75,000 हमारा EBIT था उसमें से हमने 1 माइनस टैक्स रेट करके हमने ये कैलकुलेट करा कि 13.12 हमारा प्लान 1 ने दिया है हमको EPS, अर्निंग पर शेयर 13 रुपया हुआ। 100 रुपये के शेयर पे एक शेयर होल्डर 13 रुपये कमाएगा।
एवरी ईयर। तो अगर किसी ने 100 शेयर लिए हुए हैं तो 13 इंटू 100 कर देंगे, वट एवर अमाउंट ही विल गेट इट एज द डिविडेंड ऑन दी बॉट शेयर्स ही हैज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द कंपनी ABC। अब प्लान 2 है कि हम बोल रहे हैं 50 इक्विटी से करेंगे हम, 100 फेस वैल्यू है, और 50,000 हम पैसा लेंगे हम डेट कैपिटल से, जिसपे कि हमें 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब क्योंकि पिछले वाले में मैंने आपको बोला जहाँ पर हम डेट लेंगे हम वहीं पर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जहाँ पर नहीं है हमारा डेट कैपिटल वहाँ पर हम इंटरेस्ट नहीं लेस करेंगे BIT में से। तो इसमें क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%, हमने अज्यूम कर लिया, टैक्स रेट सभी में सेम है 30%, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले से ऑलरेडी हमारे पास 3000 है, और यहाँ पे 50,000 करने के लिए हमें और ऐड हो गए 500। टोटल हमने पिछले प्लान 1 में हमने 4000 लिया था, टोटल हमारे इक्विटी शेयर्स टोटल थे 4000। यहाँ पे हमारे 3000 पुराने वाले हैं जो एग्जिस्टिंग है, और क्योंकि हम न्यू सिर्फ 50,000 रुपये ही ले रहे हैं तो 100 रुपये का एक है, तो 500 हमारे न्यू आए। तो पिछले वाले में हमारे इक्विटी शेयर्स जो थे वो 4000 थे, यहाँ पे 3500 इक्विटी शेयर्स। लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है क्योंकि हमें डिवेंचर्स को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना है, 10% इंटरेस्ट उनको देना है। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है 5,000 कैसे आया, 50,000 हमने डेट से लिया है, उसका 10% है 5,000, तो 75,000 माइनस 5,000, ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर लेंगे, 70,000 आ जाएगा। और हमने उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 0.30 से, विच इज़ लाइक 0.70, और उसको हमने डिवाइड कर दिया, हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3000 पुराने वाले 3 लाख की जो कैपिटल है, और 500 हमने अभी रेस किए जो 50,000 रुपीज़ लेने के लिए। तो 3500 से डिवाइड करेंगे जब हम उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है जिनको हमें देना है, तो ये हमें दे रहा है 14 रुपये का EPS दे रहा है, अर्निंग्स पर शेयर इज 14 रुपीज़। प्लान B जिसमें कि हमने मिक्सचर लिया है इक्विटी का और डेट का लिया है। प्लान 1 में हमने सिर्फ टोटल जो है 1 लाख रुपया वो पूरा इक्विटी से उठा लिया था और हमें उसने दिया 13 पॉइंट समथिंग। प्लान 2 ने हमको दिया 14। प्लान 3 हम अज्यूम कर रहे हैं टू रेज फुल 1 लाख रुपीज थ्रू डेट कैपिटल एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। हमने एक फिक्स्ड रेट 10% ले लिया डिवेंचर्स का कि हम पूरा 1 लाख रुपया 10% के हिसाब से मार्केट से उठाएंगे, और हम 1 लाख पर 10% जो होता है हमारा 10,000, हम सिर्फ वो हमें देना पड़ेगा, और पूरा हमें 1 लाख रुपीज़ मार्केट से डेट कैपिटल से ही मिल रहा है। हम ना तो इक्विटी शेयर्स पे जा रहे हैं, हम ना ही प्रेफरेंस शेयर्स पे जा रहे हैं। पुराने शेयर्स हमारे फिर से सेम चीज़ है, 3 लाख पुराने शेयर कैपिटल है, तो 3000 पुराने शेयर्स हो गए हमारे, यानी कि इक्विटी शेयर्स 3000 की हैं। लेकिन अब हमारा डेट जो है इंटरेस्ट वो 10,000 हो गया है। लास्ट प्रॉब्लम में ये 5%, ये 10% था, लेकिन 50,000 पे था तो 5,000 था। अभी इंटरेस्ट अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो 75,000 माइनस 10,000, हमने ये अज्यूम किया हुआ EBIT जो है वो 75,000 फिक्स्ड है, कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि 75,000 रुपये हम अपकमिंग ईयर में अर्न कर लेंगे। सो 75,000 माइनस जो हमने 10% इनको देना है डिवेंचर होल्डर्स को, वो हमने दे दिया 75 माइनस 10 65, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और माइनस टैक्स रेट से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमारे 3000 ही हैं इसमें, क्यों, क्योंकि हमने न्यू कुछ भी ऐड नहीं करे इक्विटी शेयर्स। हमने प्रॉब्लम में प्लान में इक्विटी शेयर्स को से कैपिटल को रेज करने का ऑप्शन ही नहीं लिया है, तो यहाँ पर 3000 ये वही पुराने वाले शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, जो 3 लाख रुपीज़ हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके 3000 इक्विटी शेयर्स। तो इसने हमको 15.16 दिया। तो प्लान C ने या प्लान 3 ने हमको अर्निंग्स जो दिया वो 15.16 दिया, यानी कि प्लान 1 हमको 13 पॉइंट समथिंग दे रहा था, 14 दिया प्लान 2 ने, 15.16 दिया प्लान 3 ने। अभी तक ये हाईएस्ट है। प्लान 4 हम अज्यूम कर रहे हैं टू रेज 50,000 थ्रू इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड 50,000 थ्रू 5% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि इसमें हमने डेट कैपिटल नहीं लिया, हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड ले रहे हैं, और हम इक्विटी भी से भी रेज करें 50,000। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें सबसे लास्ट में पे करना है, इसलिए हम उन्हीं के बारे में अर्निंग्स पर शेयर के बारे में जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये इक्विटी शेयर्स के लिए है।
अब उसके अलावा कोई भी और सोर्स ऑफ कैपिटल है उनको हमें फिक्स्ड और इनसे पहले देना ही पड़ता है। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही हमको देना है, प्रेफरेंस देनी ही है हर किसी को, डिवेंचर्स को भी और शेयर्स में भी। प्रेफरेंस शेयर्स को हमें, क्योंकि नाम से एक जैसे है, प्रेफरेंस नाम है उन शेयर होल्डर्स का, तो उनको भी हमें इक्विटी से पहले प्रेफरेंस देके उनका डिविडेंड हमको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो 50,000 हमने इक्विटी कैपिटल से लिया, फेस वैल्यू ऑफ 100, यानी कि हमारे पास 500 यहाँ पर और ऐड हो गए इक्विटी शेयर्स। इस प्लान के हिसाब से 500 हमारे इक्विटी ऐड हो गए, 3000 हमारे पास इक्विटी ऑलरेडी हैं जिससे हमने 3 लाख कैपिटल लिया हुआ पुराना। तो हमारा जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं डिवाइड जो होगा वो 3500 शेयर्स में डिवाइड होगा ईपीएस जब हम कहेंगे 3500 हो गया। अब हमने ईपीएस फॉर्मूले में डाल के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईबीआईटी को 1 माइनस टैक्स रेट, ये डिवेंचर्स का अगर कुछ है तो वो हमें देना होगा, डिवेंचर्स क्योंकि इसमें नहीं है तो वो जीरो रहेगा। उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा किस हिसाब से है, 5% पे हमने प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट से हम रेस कर पाए हैं, यानी कि हम 5% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे। कितना कैपिटल लिया है हमने, 50,000 कैपिटल लिया है हमने, तो 5% का 50,000 वुड बी 2500 रुपीज़। तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड 2500 लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3500 हम करेंगे जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3000 प्लस 500 न्यू वाले, तो ये 14.28 हमारा हो गया। अब प्लान ए ने हमको 13 पॉइंट समथिंग दिया, 13.12, दोबारा से जाते हैं। प्लान ए ने जब हमने टोटल इक्विटी से उठाया 1,00,000 रुपया तो उसने हमें 13.12 दिया इक्विटी का अर्निंग पर शेयर। प्लान टू के हिसाब से जब हमने इक्विटी और डेट दोनों का आधा आधा लिया, कैपिटल 1 लाख का 50,000 दोनों से रेस किया, तो इसने हमें अर्निंग्स पर शेयर दिया 14। प्लान थ्री ने जब हमने पूरा पैसा डेट से उठाया, पूरा पैसा डेट से, ना इक्विटी शेयर होल्डर्स लिया इसमें नए, ना ही हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिए नए, कोई डिविडेंड नहीं दिया, सिर्फ 10% हमने 1,00,000 पर 10,000 रुपये दिया इंटरेस्ट और टैक्स दे दिया जो हमारा 30% टैक्स था। तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर आया 15.16। ओके, प्लान 4 जिसमें हमने डेट कैपिटल नहीं लिया, हमने दोनों तरह के शेयर्स ले लिए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसने हमें 14.28 दिया। आपके हिसाब से इन 4 प्लान्स में से सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है, कौन से प्लान ने सबसे ज़्यादा ईपीएस दिया है हमको, प्लान 1, प्लान 2, कौन सा प्लान हमारे हिसाब से बेस्ट होगा। हमें 1,00,000 रुपीज़ का जो रेस करना है कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ABC कंपनी, उसके लिए हमें कौन से प्लान से जाना चाहिए, आप बताइए। Anybody can answer this? Are you guys listening to me? Give me an answer, anybody out of you. Which plan is the best, or which plan is giving the highest EPS? Plan 1 is 13.12, Plan 2 is 14, Plan 3 is 15, and Plan is 14. 4 is 14.28. Which plan is given as the highest earnings per share? You as the financial manager will go with which plan to raise the capital of 1 lakh additional capital which is required by your company ABC? Give me an answer, guys. This is so normal and easy question. सारे प्लान्स और फॉर्मूले के बाद रिजल्ट्स भी आपके पास हैं। 14 है, 13 है, 15 है एंड 14.28 है। तो ये जो प्लान्स हैं हमारे, इन प्लान्स के हिसाब से ये हमारे अर्निंग्स पर शेयर है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ईपीएस थर्ड प्लान ने हमको दिया है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 15.16। सो वी शुड चूज प्लान 3 बाय रेजिंग द कैपिटल, the entire capital of 1 lakh which is required, we should be raising it
थ्रू डिबेंचर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। और अगर हमें उससे भी कम रेट पर मार्केट में मिल सकता है डिबेंचर्स, या मे बी बैंक लोन सपोज 10 से भी कम में मिल सकता है, वो 8% ऑफ द एंटायर कैपिटल का हमको मिल जाएगा, तो ये ईपीएस 15 की जगह और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें कम पे करना है, तो जो बैलेंस अर्निंग्स बच जाएंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, और वो ज़्यादा अर्निंग्स जो हैं हमको अर्निंग पर शेयर का जो रेट है वो ज़्यादा देगा। तो प्लान 3 को हम, और अभी भी इन पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमने अजम्पशन किया है, इसमें प्लान 3 बेटर है। अगर हम प्लान 3 को और बेटर करना चाहते हैं, वी वुड लुक फॉर मोर चीपर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ डिवेंचर कैपिटल एट 10%। जो भी हम मार्केट से रेज कर सकेंगे कैपिटल, टोटल 10% ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट से कम, वो हमारे लिए बेस्ट होगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। बस यही हमको एनालाइज करना है इसमें वीआईटी और ईपीएस एनालिसिस में, कि बिकॉज टू कैलकुलेट द ईपीएस वी हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज आवर ईबीआईटी, what exactly is our tax rate to be paid to the government, and what exactly is the rate of interest to be paid to the डिवेंचर होल्डर्स। तो हम ये 3-4 assumptions करके, जो हमने अभी पहले 4 प्लान्स पढ़े हैं, जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स को भी लिया, इक्विटी को भी लिया और डिवेंचर्स को भी लिया, वो हमने प्रॉब्लम में प्लान नहीं लिया, वो भी आप लेकर देख सकते हैं। एक इसी प्रॉब्लम में प्लान 5 करके हम ले सकते हैं, मे बी 50,000 हम इक्विटी से ले रहे हैं, 20,000 हम डिवेंचर्स से ले रहे हैं, 30,000 हम प्रेफरेंस से ले रहे हैं। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके तीनों कैपिटल का, तीनों कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का भी प्लान हम बना सकते हैं, और उससे भी हम देख सकते हैं कि उससे क्या आउटपुट या रिजल्ट हमारा निकल रहा है। And maybe that plan can be better than our plan 3, but as far as these 4 plans we have studied and analyzed, plan 3 is the best for us in order to increase the earnings per share, or in order to have the highest earnings per share. Got it? Question है किसी को कुछ इसमें? I'm clicking your attendance, give me 2 minutes. Okay. So, किसी को इसमें अभी तक कुछ क्वेरी है? पुराने वाले कुछ टॉपिक्स जो अब तक हमने कवर कर लिए हैं, उनमें कुछ क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ बताइए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, और मैं ये सोच रही हूँ कि हर मॉड्यूल का आपका एक एमसीक्यू हो, जो कि 2 ऑफ अक्टूबर कल के लिए मैंने प्लान किया था, बट सिंस यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर इट, सो मे बी वी कैन नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट इट फॉर टुमारो, and somewhere on Monday or Tuesday maybe we will be having it. Once third unit will be completed, थर्ड यूनिट का हम फिर इसमें नेक्स्ट वीक में हम थर्ड यूनिट का भी ले लेंगे, ऑन मे बी ऑन द सेम डे और ऑन फ्राइडे इफ वी विल बी एबल टू कवर इट। थर्ड यूनिट में भी हमारा काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो हो नहीं पाएगा इस वीक में शायद हमारा 3rd MCQ। इट विल टेक प्लेस ऑब्वियसली इन, not in next week also, it would be somewhere in next to next week, in the second week of October. I'm not going to start a new topic because it's just 5 minutes left for this meeting. So I'm just having a discussion. किसी को कुछ भी share करना है, your any doubt, any problem,
Otherwise also anything which is apart from the syllabus, I am there to listen. एंड जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, कैपिटल तक था, वो आप प्लीज़ अपना स्टडी कर लीजिएगा. नोट्स आई हैव ऑलरेडी शेयर फॉर एवरीथिंग. किसी के पास कोई भी टॉपिक का नोट नहीं है, यू कैन पर्सनली पिंग मी इन द पर्सनल विंडो ऑन व्हाट्सएप, आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट विथ यू. इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का इंपॉर्टेंस, डिफिकल्टीज और कैश फ्लोज जो हमने एक ही पीपीटी में कवर कर लिया था. उसके बाद मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है यहाँ पे मॉड्यूल 2 में जो हमने पढ़ लिया था, एनपीवी एंड ऑल दैट. और रिस्क एडजस्टेड मेथड्स में हमारे पास दो मेथड्स थे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड एंड डिस्काउंट रेट मेथड. ये दो मेथड्स हमारा रिस्क एनालिसिस में थे. और कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल, कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, और उन सबका कंबाइन करके एक एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने निकाला था, दैट वाज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. So these all topics are part of module 2, which will be the syllabus for you for module for MCQ 2 for you guys, which may be there on Monday or Tuesday. I will let you know कि क्या timings रहेगा, एक दिन पहले मैं आपको बता दूँगी. ठीक है. So anyhow it is not happening for tomorrow because tomorrow is a holiday, although I was thinking there would be no class for you guys on second, so we can conduct MCQ, but since you are not okay with it, so I'm considering it and we will not have any test tomorrow. How are other things going on, your preparations and your assignments and all those things? Why I don't get responses from you people? Are you guys listening to me? Are you guys there, or you guys don't attend the lectures, just be online and you're not here in the meeting? Danish, can you hear me? Yes, ma'am. Thank Yes, you, ma'am. Uday. But this is something which I really feel in your class, that you guys do not respond, or maybe you guys are not participating in the things. मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, कुछ मुझे बताओ जो आप फेस कर रहे हो, या सब्जेक्ट से रिलेटेड, आउटसाइड सब्जेक्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, बट नो रिस्पॉन्स इज देयर. Anyways, for module 3, I will also just come and tell you the topics and go. Maybe I will also not want to interact with you guys if you are not interested. So for module 3, it would be EBIT and EPS analysis we have covered. We have covered two big topics of module 3 for us: capital structure decisions and financing and operating leverage. We have covered this last topic. This was the first topic of your unit 3, and EBIT and EPS analysis. This was the second topic of your module 3 or unit 3, which we have covered today. There are two major and big topics are also there in module 3, which we will be covering over a period of time, maybe a week's time or something, and then maybe we can have the next MCQ. So for MCQ 2, please get ready next week, and the syllabus for that would be module 2. Thank you so much for your time, everyone. Take care. Bye bye.